Okay. So today we will start our new system, that is nephrology. And we will start with this case. And this is the top most important, you can say that important topic, very, very much important, relevant to your, you can say FOP, TAS, AKP, clinical level. Okay. So it is very much important topic. So the name is, it is from the FOP book. It's a case number 4, wet, wet, wet. Okay. So what's the case? So you are seeing patients in the emergency department. Your next patient is 7-year-old boy with 24-hour history of high fever, vomiting, dysuria, and anuresis. Okay. So the age is 7-year-old and 1 day history, high fever, vomiting, dysuria, and anuresis. Dr. Malik, क्या condition लग रही है on the basis of complaints only? यूटीआई लग रहा है। जी यूटीआई जोर से बोलें, स्पीक अप अलाउड, वॉइस लो है आपकी। यूटीआई यूटीआई कौन सा वाला? लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई? लोअर यूटीआई लोअर यूटीआई। अच्छा, अब इस चीज को बिल्कुल आज क्लास में क्लियर कर लें। आज यूटीआई पे क्लास। Whenever you have a fever, Dr. Malik, whenever you have a systemic findings like fever, very toxic child, it is always upper UTI. Okay? It is pyelonephritis. It is not simple cystitis or lower UTI. Okay? So yes, there are complaint, our dysuria is there, but because it is associated with high fever, so this is pyelonephritis. High fever, sick child with loin pain. So these are the features which will tell you that this is not only limited to the lower part, it has reached to the upper part. Okay. And anuresis as well. Okay, now the another part. Since the age of 3 years, he has had several episodes of high fever that have been unexplained and managed at home. Very, very important history. क्या चीज है डॉक्टर मालिक? ये अनएक्सप्लेन्ड फीवर क्या है? 3 साल से क्यों हो रही है फीवर आपके मुताबिक? कोई रीजन समझ आ रहा है इसका? कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो इतना लंबा चल रहा है? कौन सा प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल तो नहीं कह सकते। अभी फीवर का रीजन क्या है डॉक्टर मालिक बताएंगे। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, कोई कॉज नहीं मिल रहा, अनएक्सप्लेन्ड फीवर है। ये क्यों क्यों है आप बताएं, आप तो डॉक्टर हैं। हाई फीवर क्यों हो रहा है? अनएक्सप्लेन्ड हाई फीवर। मरियम, मरियम, फीवर की तो हम फिर हिस्ट्री लेंगे ना, अगर स्टेप लैडर फीवर है, कोई बता दिया एसोसिएशन। उसने, उससे बताया कोई कॉज नहीं, कोई सो थ्रोट नहीं है, कोई वॉमिटिंग्स नहीं है, कोई लूज मोशन नहीं है, कुछ नहीं मिला। अनएक्सप्लेन कर दिया ना उसने, कोई आपको सोर्स नहीं मिल रहा। Always remember, UTI can present with only fever. If you are not finding any cause of it, always check urine. Please remember this word. Keep this word with me. If you are not finding any source, then no typhoid, no malaria, nothing. So think about UTI as well. So that unexplained several episodes means that with high fever, means that this child is having recurrent UTI. One complaint. So how the presentation of UTI depends upon the age of the child, we will discuss. But over here, the unexplained fever is due to the UTI. Okay. He has a past history of proven UTI 6 months ago. So proven UTI की past history है जो कि proven है, जो कि आपको culture आपको मिला हुआ है, proven है, that was managed within primary care. He is developmentally appropriate, toilet trained during the daytime. So toilet trained hai, daytime toilet trained. He does, however, wet the bed most nights.
wet the bed most nights. Okay, so night की अभी इसको वो नहीं हुई है. Night time dry by night still not have occurred. Okay, so he just become dry by day only, passing a large volume of urine that does not wake him up. Okay, so two problems are there. First problem is the pyelonephritis, history of the recurrent UTI, and third problem, at the age of the 7, the child is still not dry by night. Okay, so problems are clear to everyone. On examination, what you look, oh, its weight is 12 kg. Oh my God. By 7 years, 12 kg weight. And he is 92 centimeters tall. That is both the height and weight on the 0.4th centile. So, you know, growth parameters are very much important for pediatric. So if anything which is affected the height and weight both, definitely something chronic goings on with it. And you will be the one which, you know, will diagnose it. So the problems are recurrent UTI and the child is not well thriving. He is pale and febrile with the temperature of 39 degrees centigrade. More than 38 is significant. So it's around 102 something. His blood pressures at the age of 7 years is 121 by 78. This is definitely high, okay, at the age of 7 years. Examination of his abdomen is normal except for some left-sided flank tenderness, which we already discussed, that high fever with flank tenderness with dysuria, most likely pyelonephritis. He has normal male genitalia and bilateral descendant testes are there. Urine dipstick test was done. Initial test is always urine dipstick. Dipstick is very easy to perform. Okay, so they just simply put a stick into the urine and they check for two things. So nitrites and leukocytes both are present. Along with that, you have glucose as well, and protein is also coming in the urine. Okay, so अब डॉक्टर मालिक, ये एक बच्चा हमारे पास है, ठीक है, आपने इसका यूरिन डीआर तो करवा लिया है, ठीक है, आपको क्लियर कट नाइट्राइट भी पॉजिटिव है, ल्यूकोसाइड्स भी पॉजिटिव है. दिस इज क्लियर कट पिक्चर ऑफ यूरिन infection pyelonephritis. The question is that, Dr. Malik, now tell me what is the most appropriate next test? Most appropriate next test. They do not want diagnostic one. They want the next step, next test. Blood culture, blood glucose, CRP, full blood count, urine microscopy, and the culture. Urine Dr. Malik. microscopy and culture. Very good. Urine microscopy and culture. Very good. So यहाँ पे first of all आपने उसको क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म को पिक करना है. साइन एंड सिम्टम्स देयर, तो आपने क्लियर कट इंडिकेशन है कि डिपस्टिक में भी नाइट्राइट्स हैं पॉजिटिव और ल्यूकोसाइट्स हैं. You will go for microscopy and culture. Now, Dr. Malik, next question again for you. Following the initiation of the treatment, you have started the treatment. Now, which is the next investigation to be requested? पहला सवाल का ये जवाब दें, क्या इसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस बच्चे को? सबसे पहला तो सवाल ये बनता है. यूरिन डीआर और यूरिन सीएस तक हमारी बात खत्म हो जानी चाहिए, या हमें इस बच्चे को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? डॉक्टर मालिक बताएं. करना चाहिए. करना चाहिए कि रीजंस क्या है? करना चाहिए कि मुझे, आपने कहा ना, और फर्दर इन्वेस्टिगेट. क्या हर आने वाले बच्चे के आप यूरिन डीआर यूरिन सीएस के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं? इसमें क्या ऐसी चीजें आप कर रही हैं कि मुझे उसको फर्दर सिर्फ कल्चर और माइक्रोस्कोपी नहीं बल्कि और इन्वेस्टिगेट करने चाहिए? वो क्या पॉइंटर्स हैं आपकी हिस्ट्री में? वो रिकरेंट यूटीआई की जो हिस्ट्री है. वेरी गुड. और उसकी वजह से हम इसको करेंगे. और वेरी गुड. और फेलियर टू थ्राइव, मर रहा है बच्चा. यस, फेलियर.
yes, yes. इतना बड़ी इंडिकेशन है। फेलियर टू थ्राइव है, रिकरेंट बच्चा जो है वो यूटी। और तीसरी एक और क्या चीज है, तीसरी भी छुपी हुई है इसके अंदर, क्या है उसके अंदर तीसरी? हाई इकरा। ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी किडनीज ब्लड देखनी है। प्रेशर्स देखो हाई पे जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं। क्यों? ब्लड क्या सिंपल यूरिन दिया, सिंपल यूरिन इन्फेक्शन विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर? नो, एक और चीज भी है। देखो स्टिल वेट है एट द नाइट्स, ठीक है। एन्यूरिसिस अभी लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है बाय 7 years, बट फिर भी अगर आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस मिल रही हैं, इतना इन्फेक्शन मिल रहा है और बच्चा एन्यूरेटिक भी है, नाइट एन्यूरिसिस हो रही है, तो ये आपकी लीस्ट पर आएगी। बट जो टॉप पे जो थे वो यही थे कि रिकरेंट यूटीआई, नॉट फेलियर टू थ्राइव, हाइपरटेंशन, दीज 3 वर द टॉप रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, अब सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए इस बच्चे के अंदर? व्हाट यू थिंक सो? ये 7 years का बच्चा है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपने कराना है, क्या करवाएंगे? 24-hour ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, डेम्सा स्कैन, मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, रीनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, यूरिन प्रोटीन क्राटिनिन रेशियो। यस, Renal ultrasound. renal ultrasound scan. Very good. So next step always would be to go for ultrasound scan. अब ये जो बाकी जितने भी टेस्ट के नाम लिखेंगे, DMSA, मैच्योरेटिंग, ये मैं भी आपको फुल एक्सप्लेन करूंगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यूरिनरी प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो, इकरा हम क्यों नहीं करवाएंगे? इसमें क्या ऐसी चीज है कि यूरिनरी प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो नहीं करवाओगी पहले? ये इसमें कोई एडिमेटिस के सिम्टम, एडिमा के सिम्टम्स नहीं है, यूरिन फ्लूइड रिटेन कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। और यूरिनरी प्रोटीन कितनी आ रही है? इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है, ठीक है। 3+ होती तो फिर आप उसको यूरिनरी प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो, बेसिकली ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए होता है, ठीक है। 24 hour ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, यहाँ पे यहाँ पे कोई हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि हम उसकी इतनी स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें कि वो उसके कोई साइन एंड सिम्टम्स ऐसे आ रहे हो ब्लड प्रेशर की वजह से, तो इतनी इन्वेजिव उसकी जो है वो और इतनी इंटेंसिव मॉनिटरिंग करें, ठीक है। डॉक्टर आयशा, ब्लड प्रेशर हायर साइड पर तो नहीं है, इसको हम हायर कहेंगे बच्चों में? ऑफ कोर्स आप इसको सेंटाइल पे खोल लीजिएगा 7 years की एज पे। 121 तो मेरा नहीं होता, मेरा अपना 100 के करीब चल रहा होता है। ठीक ये है। बच्चे के एतबार से डेफिनेटली हाई है, आप इसको जरूर सेंटाइल पे कीजिएगा, पर ये हाई है, ठीक है। 121/78 एट द एज ऑफ 7 years। चाहो तो ओके। 1 मिनट में जब भी मौका मिले हेरियट खोल के चेक कर लेना। आपको भले 7 साल की उम्र के ब्लड प्रेशर पे एक नजर डाल देना, भले वो हाइट वाइट छोड़ो, जस्ट चेक के उसके क्या रेंजेस चल रही है तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बट ये हाई है फॉर श्योर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब देखो हमने क्यों पिक नहीं करा, वो क्यों मिस हुआ कि उसका फीवर आ रहा था। प्रेजेंटेशन देखो, जो यूटीआई की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी सिंपल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द एज वाइज, लाइक अंडर 3 months and over 3 months, if you can see that they still older children में, infants में, they categorize it into those who can speak or those who can verbalize or those who cannot verbalize their symptoms. So you can see under 3 months, the symptoms are very non-specific, like fever, vomiting, lethargy, irritability, poor feeding, failure to thrive. So you can see the symptoms are very non-specific. It will not tell you about that UTI is there. No dysuria, no burning, nothing. So just like any sepsis-like infection, they are very generalized symptoms are there. Okay. So that is why under 3 months, especially, for example, with neonates, what we're going to do, if we suspect any sepsis, we send a sample for urine TR and urine CS, okay? Because they will not present with the typical features. And those who are infants and older than 3 months and they cannot verbalize their symptoms, then you can see just the fever. Only the fever could be the sign. So it not depend for pre-verbal,
For older children, if you have a fever with no specific cause, you are not finding the actual, source for it. So always think about to check urine. Okay, it's very hidden. So fever, it could present with the fever, and you can see abdominal pain, loin tenderness, vomiting, poor feeding. So very generalized symptom: fever, abdominal pain. So you may think about abdominal pain, vomiting, enteric, but you can see UTI can present in the like this as well. And for the verbal child, for the older children, they present just like an adult. They will have a frequency, repeated increased frequency, and they also complain of dysuria, burning maturation, and urgency in all this. Okay. So dysfunctional voiding means they will complain of urgency and increased frequency and blah blah. Changes to continence. So changes to continence means they started to passing urine at daytime as well because of this urgency and all that. So if it is limited to the lower part, so it will only have lower abdominal pain in cystitis. But if it is goes upward like upper UTI, then it will present with loin tenderness. Okay. So these are the important sign and symptoms which depends on the age. Okay. For UTI. Now, what we discussed, that what are the risk factors. Okay. So what I told you, that every child, when you encounter in your OPD or in your hospital, you do not write ultrasound, MCUG, DEMSA, blah, blah, blah. You do not go for extensive workup for every child. But you should know that which factors or which risk factors for UTI, which, tell you that there is underlying serious pathology is there, and you must, go for extensive workup for those children. So what are those points which will, suggest you? The first point is that you can see poor urine flow in the male. Okay. So if the urinary stream is not proper, then it will tell you that probably there is a lower side obstruction is there. That is why the urinary flow or urinary stream is poor in the male. History of any recurrent UTI, like in our case, always tell you that should go for extensive workup. Recurrent fever of uncertain origin. See, recurrent fever of uncertain origin, they don't know exactly the cause, but recurrent fever is again a risk factor. Antenatally diagnosed renal or urinary tract abnormalities. Antenatally, if you diagnosed renal or urinary tract abnormalities, then also you go for extensive workup as well, and they are also a risk factor for recurrent UTI as well. Okay. Family history of VUR is also very important. Constipation also causes recurrent UTI. Dysfunctional voiding, like any frequency, urgency, urge continence is there. It is also associated with underlying, could be the problem is there. Enlarged bladder, which we also call neuropathic bladder. Abdominal masses, which could be due to constipation. Evidence of any spinal lesion, spina bifida, which is occulta type. They are sometime associated with these bladder and bowel dysfunctions. Poor growth, like in our case, and high blood pressure. So if you find any clue in this, picture, like for example, if they tell you about there is enlarged bladder is there, then you must think to, check for underlying pathology and investigate those child thoroughly. Okay. So these risk factors are very much important. Now we will discuss how you will going to investigate. Okay, so you are suspecting the first test, like in our case, it was done just a simple clinic-based test. You do not go here and there. Just, sticks are there in their clinic. They just simply, put that stick in the urine and it will tell you the status. So simply dipstick test. On what you look for that, you just look for leukocytes and nitrites. Simply you see these two things, and on the basis of these two components, you decide further which test should be performed. So in which conditions you will perform dipstick? See, all symptomatic children,
unexplained febrile admission. So unexplained if you have fever, especially if it is more than 38 with an alternative site of infection, but who remains unwell. Okay. Alternate site of infection से वो present तो किया था, but you have given antibiotic, you have given treatment. Still the child is not responding with it. Think that could be underlying UTI is there. So it's our common practice. When we are not getting response to antibiotic, we send the cultures from urine, from blood and blah, blah. So we always look urine. So that's the indication for dipstick. So what I told you in dipstick, we think two major things, the leukocytes and the nitrites. So you can see in this chart is very important, and it will tell you when you do the simple dipstick and you find that both leukocyte and nitrites, both if are positive, like in our case, both are positive, action would be send urine sample for culture and start antibiotic treatment of UTI. So they are not, telling you clinically isko correlate kare, situation ko dekhe. Simply इन्होंने कहा if both are present, don't think about to start the treatment. Start antibiotic treatment and send the urine sample for culture. But you can see if both are negative, do not send urine sample for culture unless recommended an indication. अगर कोई exceptional indication है तो अलग बात है, and do not start treatment for UTI. So you can see how simple is this. If you have both are present, start the treatment, send the culture. If both are negative, you will be away from UTI, you will not start the treatment, and you will not send the culture. Now the situation is if either is positive or negative. So the first case, you can see that if the leukocyte trace is negative, but nitrite is positive. So what they are saying that if the nitrite is positive or if the leukocyte is positive, either of it, if it is positive, they're saying send urine sample for culture, send urine sample for microscopy and culture. Okay. But the next part is different. Okay. In both the situation, you will send the sample for microscopy and the culture. But the difference is that if you have nitrites are positive, if the nitrite is positive, you will start antibiotic treatment. If the fresh sample tested, okay, if the sample was fresh, then you can simply start the antibiotic treatment if nitrites are coming. That means the nitrites are more specific, more sensitive. If they are coming, it means you should start the antibiotic treatment. But if they are not coming, in the third case, if they are negative and leukoestrase is positive, then they say only start antibiotic if good clinical evidence is there. Okay. So it means that the leukocyte estrase are not a very specific or sensitive marker. Yes, it is sensitive, but it is not that much to the nitrate. So if it is positive, you will send cultures, but you will correlate the clinical evidence, clinical situation, and then only you can start the antibiotic treatment. Is that chart clear to everyone? Yes. Yes. ma'am. Very good. Okay. So please remember, this is a simple, we are not practicing this dipsticks, but dipsticks are very common in SIUT for nephrotic. They simply, pass your strip and check it whether protein is coming or not, whether we should deal with this patient or refer it. So it's a very, clinical based and very simple test. Okay. Next. Now the thing is that what are the indications for urine CS? Okay, so urine CS, like in our practice, already we know that it's an expensive test as compared to the DR. Okay, so like in NHS, they are not sending everyone urine DR, urine CS. They are not. So initially, what they go for the dipstick, then microscopy. And what are the condition in which you have to send the CS? So you can see positive results of leukocyte or nitrate. If either of it is coming, then you should send the urine CS. First indication is that. Second indication is that age under 3 years.
Why they say age under 3 years? Why they say age under 3 years, Dr. Malik? Why age under 3 years? Dr. Zephyr? Why they mention this age specifically for CS? You can see the presentation which I told you, that in the younger ages, you do not have a clear symptoms for UTI. So you can say probably just a fever could be there. So the child cannot be verbalized so much before 3 years that I have a burning and blah, blah, blah. So, that is why they're saying that under age 3 years, think about you don't rely upon the clinical condition, just send the CS. Okay? If the child is very young, they will not be able to tell you. Okay, so that is why. मैडम तो पहले यूरिन आर नहीं कराना चाहिए उसमें, पहले यूरिन आर ही करा, यूरिन या तो कराना है, उसके साथ यूरिन CS भी करवाना है। ठीक है, लेकिन अगर वो माइक्रोस दोनों नेगेटिव आ जाए फिर? नहीं नहीं, वो तो अलग सिचुएशन है, रूल आउट हो गया ना। वंस यू डू नॉट हैव नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी दोनों चीजें नेगेटिव है ना, तब आप, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों चीजें आपकी नेगेटिव है, तब तो आपने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर अनलेस रिकमेंड इन इंडिकेशन फॉर कल्चर, तब भी ये लिखा है कि कल्चर 100% रूल आउट नहीं है। अगर अंडर 3 ईयर बच्चा है, आपको नहीं मिल रहा डिप्स्टिक में, दोनों चीजें नहीं मिल रही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसकी हिस्ट्री है कि उसको रिकरेंट UTI होता है, उसकी हिस्ट्री है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की, अगर कोई और इंडिकेशन बन रही है और वो एज भी उसकी कम है, आपको पता है कि सिम्टम्स इतने क्लियर नहीं है, आप करवाएंगे CS। जैसे देखो प्रीवियस हिस्ट्री है रिकरेंट UTI की, then only you go for CS. And you can see it, the infection that does not respond to treatment within 24 to 48 hours. So you can see that depends what happened. If you start the treatment, especially if you didn't send the culture and you started the treatment, and if you are not responding with the treatment 24 to 48 hour past, then this is also the indication to pass CS. Okay. Clinical symptoms and dipstick test do not correlate. See the word coming कि dipstick में तो कुछ नहीं आ रहा, but clinical symptoms आ रहे हैं. So if they are not correlating, that is only the need कि आप CS करा के उसे confirm करें. And if you are suspecting pyelonephritis, then in that situation always. So under 3 का मतलब आपको समझाने का ये है कि जो एज आपकी छोटी होती है, उसके अंदर अगर आपको मिस कर देंगे यूरिन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बच्चा है, 7 ईयर्स का ही बच्चा हो गया, बिल्कुल फेलियर टू थ्राइव हो गया, उसको फीवर आते रहते थे, ठीक है ना, तो आपने उसको मतलब उसमें सस्पिशन हाई रखना, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए टुवर्ड्स UTI। तो क्या होगा कि जितनी छोटी एज में अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है और आपने नहीं पिकअप किए, तो उसकी तो किडनी डैमेज कर दी ना आपने। तो दैट इज व्हाई अंडर 3 years you should be, they cannot verbalize, the symptoms are not very specific, so that is why you should be very high suspicion। अगर आपको चीजें जैसे कि आपको दोनों चीजें नेगेटिव मिल रही है, सिम्टम्स आपको प्लस माइनस आवाज गायब हो गई है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है अभी।
Sorry, मेरे यहाँ पे issues थे. I'm sorry. So this indication for urine CS is clear to everyone. It's clear. Am I audible? It's हाँ जी आवाज आ रही है. Thank you. Okay, now we will discuss about the classification of UTI. Okay. So actually why this is very important, again, the reason is that which children should be investigate, further or not. Okay. So we just classify this into simple UTI, atypical UTI, and the recurrent UTI as per your guideline. So you have a UTI guidelines in your book as well. And after this lecture, you will all read those guidelines as well. They are the most important guidelines, okay? One of the most important. So next is, first of all, we will categorize what is simple UTI. So simple UTI, the definition is very simple. Most of the time they respond within 48 hours. And the organism in simple UTI is most of the time it is E. coli. So two words for simple UTI, caused by the E. coli and responds within 48 hours. So this is the definition for simple UTI. And what is atypical UTI? So you can see that atypical UTI, that if the child present very seriously ill, if they have a problem related to the poor urine flow is there, abdominal or bladder mass is palpable, raised creatinine, septicemia, failure to respond to treatment within 48 hours, and infection with organism other than E. coli. So those risk factors which we discussed, a stream problem, masses, kidney failure, septicemia. So if they are present, it means that the child is not have a simple UTI. This child present with the atypical UTI, this child need further investigations. Okay. For simple UTI, we will see that we do not need so much investigation. We simply do the microscopy and cultures. But for atypical UTI, you will do the ultrasound, maybe MCUG, maybe DEMSA. So, you need to investigate it further. So what are these presentations? So you can read all this if they are presented with the stream problem, if they present very sick child, failure to thrive, failure to respond to treatment, and organism you cultured which is other than E. coli. Okay, so you should know about this, about the features of atypical UTI. Next is when you label it as a recurrent UTI. Okay, so for recurrent UTI, the word is 1, 2, and 3. So 1, 2, and 3. So first we read about 1. So one episode of UTI with acute pyelonephritis, that means upper UTI. One episode हो चुका है इसको upper UTI का, plus one episode इसको lower UTI का हो चुका है. So total तो 2 episodes हैं, लेकिन 1 upper UTI है, 1 lower UTI है, और आपके पास वो थर्ड टाइम प्रेजेंट किया है किसी भी फॉर्म में, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, आपने उसको लेबल करना है रिकरेंट यूटीआई. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? या तो 2 या मोर देन 2 एपिसोड्स हो चुके हो अपर यूटीआई के, ठीक है, देन ऑल्सो यू विल लेबल इट एज अ रिकरेंट यूटीआई. And third is 3 or more episodes of lower UTI. Okay. So this is the example 1, 2, 3. 1 means 1 upper UTI plus 1 lower UTI. 2 or more upper UTI. 3 or more lower UTI. Then you will label it as a recurrent UTI. If any child presenting with 2 times cystitis, second time with the cystitis, you will not label it as a recurrent. For recurrent, you should have 3 or more episodes of cystitis. Okay. Clear this classification? Any question in this? Okay. So what was written in that? Due to the several risk factors. Okay. What were the several risk factors?
This case warrants further renal imaging. The best next step would be to perform renal ultrasound scan. As the patient had कौन से इसके risk factors थे, had recurrent UTI and has a risk factor for underlying pathology. Recurrent UTI की underlying pathology में he has recurrent fever of unknown origin. He has dysfunctional voiding, poor growth, high blood pressures. So that all summarizes the age and indications. So वो table अभी हम discuss करेंगे, ठीक है? बट हमें ये समझ आ गया है कि ये पेशेंट जो है वो सिंपल नहीं है, बल्कि इसमें जो इंडिकेशन है वो रिकरेंट यूटीआई के अंदर ये लेबल हो रहा है और एसोसिएटेड विद अदर रिस्क फैक्टर्स एज वेल. So what the ultrasound do basically? Ultrasound scan would determine the anatomy, size and shape of the kidney. So what we see in the ultrasound, we see the anatomy, we see the shape. So size and shape, small kidneys indicates that chronic disease, while obstruction can be identified, and irregular kidney shape may represent renal scars or current pyelonephritis. Okay, so if you have an obstruction in the renopelvic system, that also can be picked up on the ultrasound as well. You observe that there is a dilated ureter is there, pelvic calyceal system is dilating. So you can pick the obstructions as well by the ultrasound, as well as you can also by irregular shape, you can assume that there is a renal scar, but it not confirmed, okay? So how you confirmed about renal scarring? So renal scarring ke liye you have a DMSA scan. DMSA, you have two type of scan. For kidneys, you have two types of scan, DTPA, and the second is DMSA. So the DMSA scan is basically look for renal scarring, okay? So ये आपको scarring देखने के लिए बताता है कितना % किडनी का scar हो चुका है, ठीक है? And DMSA scan are always performed 4 to 6 months after acute infection. Scarring takes time to develop. So if you perform DMSA just after the acute infection, you will miss it. So always when you look for DMSA scan, it should be at least 4 to 6 months after the acute infection to reduce the rate of false positive findings. तो टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. टू इन्वेस्टिगेशंस का, फर्स्ट वाज रीनल अल्ट्रासाउंड, व्हाई वी परफॉर्म एंड व्हाई वी परफॉर्म डीएमएसए. डू यू थिंक कि इस बच्चे में डीएमएसए स्कैन होना चाहिए? आप बताएं, अभी छोड़े गाइडलाइंस तो हम पढ़ेंगे. डू यू थिंक इस बच्चे का होना चाहिए डीएमएसए स्कैन? हुजैफा, डॉक्टर हुजैफा. मैडम रिकरेंट यूटीआई और हाइपरटेंशन है तो होना चाहिए. होना चाहिए. वेरी गुड. सो रिकरेंट यूटीआई के बाद तो हमें देखना है कि इस यूटीआई की वजह से कितनी किडनी डैमेज हो चुकी है, कितना किडनी में स्कारिंग बन चुकी है. तो यस, तो इस बच्चे का हम जो है अल्ट्रासाउंड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, अल्ट्रासाउंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा डीएमएसए स्कैनिंग होगी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ना है कि अब ये वाला जो चार्ट है ना, ये चार्ट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट विल टेल यू क्या हाउ यू विल गोइंग टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशंस. So you can see over here that this simply first in the you can see in this axis, in this rows, you can see they divided into 3 rows. The first one is the simple UTI that responds well to the treatment. They are called simple UTI. The second category is for atypical UTI, and the third category is for recurrent UTI. So all these classification, all these definitions we have discussed. First thing is this. Second thing is that they categorize the investigation on the basis of age. So you can see under 6 months, there is a one categorization. 6 months to 3 years, we have second categorization. And over 3 years, we have third.
So on the basis of the age, we have under 6 months, 6 months to 3 years, and over 3 years. So these three are the categorization for age-wise. And the third thing which we have to look for that, which they are looking for, three basic investigations they are looking for. First is the ultrasound, second is the DMS scan, and third is the MCUG. Okay. So these three investigations we perform most of the time with the children's. Okay. So first of all, just remember one thing, what I told you, if the child present with simple UTI, it means that simple UTI means this child present first time with UTI in your OPD. It could be first time pyelonephritis, it could be first time cystitis, but this is the first time. And either pyelonephritis or cystitis, you have started the treatment and you see the child is started getting better. So you can see over that in all ages, you can see that you will not perform any investigation except under 6 months, except under 6 months. Because why did you want to do ultrasound under 6 months, even with simple UTI? Because you do not miss the anatomical problems. Maybe the anatomical lesions are presenting at this time, first time, okay? Under 6 months, definitely the anatomical problems will present. So that is why, because of because of the fear of anatomical problems, maybe due to the VUR, maybe due to the obstruction, maybe due to the urethral valves, whatever the cause, most of the time they will present under 6 months. So even with the first attack of simple UTI, you will perform ultrasound, and this ultrasound should be performed within 6 weeks, no emergency, okay? Because this is a simple UTI, so you just wait for 6 weeks. Because why you wait for 6 weeks? Because what happened when we just write the ultrasound at the time of urinary infection, we do not have a clear picture, because you may see that at the time of UTI, it is written that hypoechoic lesions, hyper or hypoechoic kidneys, and blah, blah. So you do not have a clear picture at that time. So that is why it is preferable to do the ultrasound within 6 weeks of the acute infection. And other than that, you do not need any treatment. You do not need any treatment if the child presents with simple UTI. Okay? This is clear to everyone? Second rule is that, please remember it, second rule. Second rule is that MCUG. What is MCUG? Maturating cystourethrogram. And what we look for, maturating cystourethrogram, मुज़फ़्फ़र क्या नजर आता है? क्या देखते हैं? क्यों कराते हैं और क्या देखते हैं इसमें? कैसे करते हैं? कुछ आइडिया है किसी को इसका? इकरा? हाँ जी, इसमें वेजाइको-यूरेटेरिक रिफ्लक्स देखते हैं, नीचे से ऊपर डाई डालते हैं और फिर वो आपको बताता है कि रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा। वेरी गुड। और क्या देखते हैं इसमें? एक और चीज भी देखते हैं मेल बेबी में स्पेशली, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स के लिए करवाते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स देखते हैं, ठीक है। और ज्यादातर इसमें इकरा इज एब्सोल्युटली राइट। होता किस तरह ये टेस्ट, सिंपली आपने कैथेटराइज करना होता है बच्चे को, और कैथेटराइज करके आप थ्रू कैथेटराइज आपने डाई डालनी है, ठीक है। तो डाई जो है वो ट्रेवल करेगी आपका लोअर से अपर की तरफ, ठीक है। So normally what happened when the dye goes upward because of this catheter in the bladder, because if you do not have a problem, like if you do not have any leaky junctions over there, or valves are okay, so the dye must stay in the bladder only. It should not move up to the ureters, okay? If it is moving up, that means you have vezico-ureteric reflexes there. So most of the time to check VUR, you do this test MCUG.
Okay, and second thing is that posterior urethral valve. So posterior urethral valve is due to the obstruction at the level of the urethra in the male. So when you pass the dye through the urethra, it will trace the whole pathway of the urethra, and you can observe that you have a post obstruction, you have a constriction of the urethra, and प्री ऑब्स्ट्रक्शन से पहले जो यूरेथ्रा होगा वो बहुत डायलेट हुआ होगा। तो ये चीज आप जो है वो पिक करते हैं। इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये दो कंडीशन है जो आप एमसीयूजी पे पिक करते हैं, ठीक है। सो एमसीयूजी जो है नॉर्मली, चूंकि देखो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, वाल्व का प्रॉब्लम है, वीयूआर है, और दूसरी चीज आपको क्या पता चली कि इसके अंदर पेशेंट को पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है, या फिर पेशेंट को एनाटॉमिकल अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, पेशेंट एंटीनेटली जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी है, हाइड्रोयूरेटर भी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है, एट दैट टाइम भी आपको वीयूआर चेक करना होता है, उस टाइम भी आप एमसीयूजी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एमसीयूजी जो है वो आप ये याद रखें कि ये सिर्फ अंडर 6 मंथ्स के लिए ये टेस्ट है, ठीक है। किस टेस्ट? हमारी सेटअप का अलग है सिस्टम, हमारे सेटअप में चीजें बहुत लेट डायग्नोस होती हैं, वीयूआर भी बहुत लेट डायग्नोस्ड होता है, लेकिन जो एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड होते हैं वो आपके पिक कर लेते हैं। वीयूआर अगर आपको है या आपको अपर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं किडनी की, वो सारी की सारी अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाती है एंटीनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि अंडर 6 मंथ। अब हमारे सेटअप में अगर बच्चा बड़ा भी आ रहा है and if we are suspecting VUR तो हम तो MCUG कराएंगे, but for their setup MCUG आपने याद रखना है कि this is the test for under 6 months, ठीक है। किसका है ये टेस्ट? under 6 months के लिए। so under 6 month जो है, अगर आपको एटिपिकल यूटीआई हो जाए या रिकरेंट यूटीआई, एज ही ऐसी है कि आप हर कुछ करवाओगे, MCUG भी, डेम्सा भी और अल्ट्रासाउंड। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि क्योंकि एटिपिकल यूटीआई है और रिकरेंट हो रहा है, तो डैमेज तो ऑलरेडी है, दैट इज व्हाई उसकी प्रेजेंटेशन एटिपिकल है। और रिकरेंट में तो ऑलरेडी पहले भी कई बार इन्फेक्शन हुआ है, तो आप अक्यूट पीरियड में ही अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। यू विल नॉट वेट फॉर 6 वीक, क्लियर? You will not wait for 6 weeks, and after that you will perform DMSA as well after 4 to 6 months and MCUG as well. Clear? Up till now, these points are clear. This chart is very difficult, very confusing. When the patients came to you, you always confuse. So I'm just trying to make it very simple. If the simple UTI is there just under 6 months, you do the ultrasound, no need of any treatment. But if any recurrent UTI, atypical UTI, especially under 6 months, what I told you, under 3 months also remember, अंडर 3 मंथ हो या अंडर 6 मंथ हो, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंडर 6 मंथ आप एमसीयूजी करवाते हैं और 6 मंथ ऑनवर्ड्स आप एमसीयूजी नहीं करवाते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स क्यों नहीं कराएंगे अगर उसमें रिकरेंट पिक हो हो रहा हो? जाती है ना। हम क्या चीज पिक कर रहे हैं? पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स, वीयूआर, सारी एंटीनेटली पिक हो जाती है चीजें, तो आप पहले ही करा देते हैं, ठीक है ना। हमारा सेटअप इज टोटली डिफरेंट, वी डू नॉट हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास वीयूआर लेट एज में प्रेजेंट होके आता है, तब हम तो कराएंगे, बट उनके सेटअप में मोस्ट ऑफ द टाइम वीयूआर जिसके लिए हम कराना चाह रहे हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ये सब की सब एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड पर ही पिक होती हैं। किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किडनी में कुछ इश्यूज है, वहां पे सारी चीजें पिक हो जाती हैं, इसलिए नहीं करवा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है, ये अर्ली पिक होने वाले प्रॉब्लम्स है, ये वो अक्वायर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है कि वीयूआर किसी को था नहीं और उसको 2-3 साल बाद जाके होगा, ठीक है। क्लियर है बात? जी। क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, ठीक है। तो हमने अब तक क्या चीज पढ़ी कि हमारे पास अंडर 3 इयर्स बहुत ही एज ऐसी है जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे टेस्ट करवा रहे हैं। अंडर 6 मंथ हमने सिर्फ एक डिफरेंस रखा है कि हम एमसीयूजी कराते हैं, और ओवर 6 मंथ के बाद हम एमसीयूजी नहीं करवाते।
तो रिकरेंट यूटीआई के अंदर हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाना है और डीएमएसए भी करवाना है, ठीक है। अब अगर किसी को ये चीज याद नहीं रहती कि कब अक्यूट पीरियड में कराएं या 6 वीक्स का वेट करके कराएं, तो ये कोई ऐसी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं। बस इसके लिए भी सिंपल बात ये याद रख लें कि एटिपिकल यूटीआई की प्रेजेंटेशन ही इतनी वो है, जैसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, सेप्टिसीमिया है, इसकी कंडीशन इतनी सिक है, उसके अंदर आप वेट नहीं करते 4 to 6 वीक्स का, उसमें आपने अल्ट्रासाउंड फौरन करवाना है। कोई भी एज हो, कोई भी एज हो, एटिपिकल में आपका अल्ट्रासाउंड फौरन होता है, ठीक है। सिंपल के अंदर तो अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है सिवाय अंडर 6 मंथ में। एटिपिकल के अंदर आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं सिवाय, मैंने आपको बता दिया, एमसीयूजी के। और दूसरी बात ये बताई, अल्ट्रासाउंड आपने अक्यूट फेज के अंदर ही करवाना है, ठीक है। और अच्छा डीएमएसए, अच्छा एक चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि एटिपिकल यूटीआई के अंदर ओवर 3 इयर्स, अगर ओवर 3 इयर्स बच्चा है तो आप डीएमएसए नहीं करवा रहे, ठीक है। क्यों डीएमएसए नहीं करवा रहे, क्यों डीएमएसए नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको अंडरलाइन कोई ऐसी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोबेबली ओवर 3 इयर्स है ना, एज बड़ी हो गई है, तो दैट इज वाई सिर्फ एक अगर आपको एपिसोड हुआ है एटिपिकल का तो यू आर नॉट गोइंग फॉर डीएमएसए, ठीक है। थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, बट फॉर रिकरेंट यूटीआई यू ऑलवेज गो फॉर डीएमएसए इन ऑल एजेस। डीएमएसए स्कारिंग को चेक करता है और रिकरेंट यूटीआई में आपने सारी एज के अंदर डीएमएसए करवाना है। एमसीयूजी का सेम प्रोटोकॉल है और रिकरेंट यूटीआई के अंदर आपने अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है, बट अगर एज ओवर 6 मंथ हो गई है तो आप थोड़ा वेट करके करवा सकते हैं, कोई ऐसे इतनी इमरजेंसी नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर इट बाय योरसेल्फ। में भी आपने 6 वीक्स वेट करना है। हाँ एग्जैक्टली, उसमें वेट करना है। एटिपिकल में वेट नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड फौरन करवाना है। अंडर 6 मंथ तो हर चीज एक्सेप्शनल है, उसमें आपने रिकरेंट में भी फौरन अल्ट्रासाउंड करवा लिया था। वजह इसकी ये कि उसके अंदर पैथोलॉजी है। अंडर 6 मंथ अगर कोई रिकरेंट यूटीआई आप वेट नहीं करेंगे 6 हफ्ते तक, उसमें कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, तभी आप उसको अल्ट्रासाउंड अक्यूट पीरियड में करा रहे हैं। ओवर 6 मंथ्स कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स कम होते चले जाते हैं तो आप वेट कर लेते हैं, बट आप एमसीयूजी ओवर 6 मंथ नहीं करवाते। रिकरेंट यूटीआई में सब में डीएमएसए स्कैन आप करवाते हैं 4 to 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो ये आप 2-3 दफा जब आप क्वेश्चन सिनेरियो सॉल्व करेंगे, 2-3 दफा चार्ट पे नजर पड़ती रहेगी, देन ओनली थिंग्स स्टार्टेड टू मेक सेंस। बट जो ब्रॉड है, जो ब्रॉड चीजें जो बताने की थी वो यही है। इतना ही मैं बता सकती थी कि एक वर्ड लिख लें कि सिंपल यूटीआई अगर हमारे पास है, सिंपल अगर हम 2-3 सेंटेंसेस लिख लें, सिंपल यूटीआई है तो सिर्फ अंडर 6 मंथ अल्ट्रासाउंड करवा लें आफ्टर 4 to 6 वीक्स। एटिपिकल यूटीआई है तो आपने अल्ट्रासाउंड एक्यूट में ही सबका करवाना है, सारी उसमें जो है ना वो अल्ट्रासाउंड सबका करवाना है। और दूसरा इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि एमसीयूजी की यहाँ पे बहुत वैल्यू है, ठीक है। स्पेशली एमसीयूजी अंडर 6 मंथ आपने लाजमी करवाना है, चाहे वो एटिपिकल हो चाहे वो रिकरेंट हो। रिकरेंट का केस में आपने डीएमएसए स्कैन सबका होगा, अल्ट्रासाउंड जो है एक्यूट फेज में सिर्फ अंडर 6 मंथ का होगा, बाकी सारे बच्चों का अल्ट्रासाउंड जो है वो 6 वीक्स के बाद होगा। डीएमएसए स्कैन ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर अगर एटिपिकल प्रेजेंट है तो नहीं करवाएंगे, सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही करवा लेंगे एटिपिकल के अंदर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा रिवीजन है एंड देन इंशाल्लाह थिंग्स विल मेक सेंस इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आपने मैनेज कैसे करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। इफ यू हैव अ सिस्टमिक इलनेस, फीवर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड विद लॉयन पेन or tenderness, or लिखा है, you may be have or not, it's not and, it's or, so it's just the fever is the only important thing with dysuria and all that. If it's age under 3 months you will give IV cefotaxime, but if it is over 3 months and child can tolerate oral you will start with co-amoxicillin, but if it's not or tolerate orally then you go for IV co-amoxicillin for 7 days.
And if the child is having penicillin allergies, then you can shift to the cefuroxime. You do not need to know the doses, or you can give gentamicin as well. For cystitis, for lower UTI, you just give the cephalosporin cephalexin oral for 3 days. So what you need to remember, under 3 months, cefotaxime, over 3 months, coamoxiclav. If it's allergy, then go for cefuroxime or gentamicin. If cystitis, give cephalexin only for 3 days. तो that was all related to the UTI. ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन, जो केस था, उसका हाफ पार्ट था रिलेटेड टू यूटीआई. क्या हमें इस बच्चे को फर्दर क्या करना चाहिए. तो अब हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि ये बच्चा चूंकि 7 ईयर्स में प्रेजेंट हुआ है, रिकरेंट यूटीआई के साथ प्रेजेंट हुआ है, फर्स्ट हम रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे. और चूंकि ये रिकरेंट यूटीआई के साथ हुआ है, 7 ईयर्स का बच्चा है, इस एज में हमारा अल्ट्रासाउंड वेट कर सकता है. हम 4 to 6 वीक्स में अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे. इट्स नॉट इमरजेंसी क्या हम करवाएं अभी. दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है, चूंकि रिकरेंट यूटीआई है, उसमें हमने सब में पढ़ा है कि इसमें डीएमएसएस स्कैन भी होना चाहिए. तो दैट इज वाई लेटर ऑन इसके अंदर हम जो है वो डीएमएसएस स्कैन करवाएंगे. दैट इज वाई यहाँ समरी के अंदर सिर्फ 2 ही टेस्ट मेंशन किए गए थे. एक अल्ट्रासाउंड की बात की गई थी और एक डीएमएसएस स्कैन की बात की गई थी. एक सवाल आता है डीटीपीए. डीटीपीए आपका इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, और डीटीपीए की ज्यादातर चीजें एकेपी रिलेवेंट है. डीटीपीए जो है ना, वो सिर्फ इतना याद कर लें कि जो आपकी अपर ऑब्स्ट्रक्शंस होती है ना, अपर कहाँ की होती है, यूरिट्रोपैल्विक जंक्शन की. पेल्वो यूरिट्रिक जंक्शंस के जब प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल किडनी से निकलते ही जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, वहां पे चूंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे तक एमसीयूजी तो ऊपर तक इतना जाएगा नहीं. एमसीयूजी तो ऊपर जब ही जाएगा जब वीयूआर है. अगर विजाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स ही नहीं है तो वो तो ऊपर आएगा ही नहीं, यूरेटर में आएगा नहीं. तो अल्ट्रासाउंड भी आपको पिक्चर दे रहा होता है थोड़ी बहुत, तो आपको उसको कंफर्म करने के लिए, अपर ऑब्स्ट्रक्शन को कंफर्म करने के लिए आपको डीटीपीए कराना होता है. और डीटीपीए क्या होता है कि उसमें आप वीनस, इंट्रावीनस आप डाई देते हैं किडनी को. और अगर किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो डाई जो होती है ना, वो बहुत देर से किडनी से निकलती है. तो आप टाइम नोट कर रहे होते हैं कि कितनी देर में जो है वो किडनी से जो है डाई बिल्कुल खत्म हुई है. तो जितनी सीवियर अपर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उतनी प्रोलॉन्ग डाई परसिस्ट करती है किडनी के अंदर, और वो किडनी से नहीं निकल पाती. तो ये आपको डायग्नोज करता है अपर प्रॉब्लम. मे बी अभी आपको चीजें सेंस ना कर रही हो, because I don't have a picture right now, but I'm just giving a concept. Okay. नेक्स्ट फेज अब हमारा क्या है सिनेरियो का. अब दूसरा प्रॉब्लम इस बच्चे को क्या था, जो हमने पढ़ा था कि नाइट टाइम एन्यूरिसिस हो रही थी बाय 7 ईयर्स. ठीक है, एक तो वो बच्चा था. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं रिलेटेड टू एन्यूरिसिस. तो पहले हमने क्या चीज पढ़नी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इन्होंने कुछ ऊपर मैनेजमेंट्स बता दिए. ठीक है, यू कैन सी कि मैनेजमेंट एन्यूरिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and you can see you have a different options for that: alarm system, anticholinergic medication, bladder training, desmopressin, laxative, lifting a sleeping child, no intervention, reduce fluid intake, referral to tertiary specialist, tricyclic medication. So ये सारी जो है ना, वो आपके सम पॉइंट पे कोई ना कोई आप जो है वो मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ यूज कर रहे होते हैं. तो अब उन्होंने बताया कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो choose the single most appropriate management option. ठीक है, अब आपने single most appropriate management option select करना है for each case. ठीक है, डॉक्टर ज़ैफा, first case for you, second case for डॉक्टर इकरा, and third case for डॉक्टर मरियम. ठीक है, चलो अब रेडी रहो सब. हुज़ैफा, this is a 5-year-old girl, 5-year-old girl with recurrent UTI, overgrowth, who has daytime dribbling of the urine and the nocturnal enuresis. What would be your treatment or management option in this case? Dr. Zephyr, are you there? Ma'am, old girl with recurrent UTIs and overgrowth was daytime dribbling of urine.
मैम इसमें रेफर टू टर्शरी Very good. Very good. See, it's not a simple nocturnal enuresis, and he picked up. What he picked up, Dr. Zephyr said, this is not a simple nocturnal enuresis कि उसको मैं अलार्म दे दूं, उसको मैं मेडिकेशन दे दूं. उसके साथ जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, why recurrent UTI, which is causing poor growth, and second, daytime dribbling. If you have a daytime dribbling with nocturnal enuresis, think about structural problem. Think about, always remember कि अगर nocturnal के साथ daytime symptoms आ रहे हैं, तो problem जो है वो आपकी simple नहीं है. It is related to the structural problems, and फिर उसको further structural problem को further क्या चीजें support करिए कि बच्चा failure to thrive है और recurrent UTI भी हो रहे हैं. So you will simply manage, go to referral to tertiary center. Very good. Now, Dr. Ikram, now your turn. 9-year-old girl who has recently developed straining for her bowel openings with daytime frequency of urination and also has episode of nocturnal enuresis occurring approximately once a month. 9-year-old girl recently developed straining of her bowel openings with increased daytime frequency of urination and has episode of nocturnal enuresis. Laxatives. Okay, occasional है, daily नहीं है. Episodes in nocturnal enuresis के occurring approximately once a month. उसको laxatives देंगे, constipation की वजह से हो रहा है. Very good. ठीक है, तो यहाँ पे उसने अंडरलाइंग प्रॉब्लम को पिक कर लिया कि इसकी ये एन्यूरिसिस जो है वो सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है. तो अभी हमने यहाँ पे क्या चीज देनी चाहिए, लेक्सेटिव्स देने चाहिए. ठीक है. नाउ मरियम, आर यू देयर? जी. Okay, Mary. Now this is your question. This is a 7-year-old boy who has been dry at daytime. Has been dry at daytime since the age of 2 years. 2 साल से ही वो dry by day हो चुका है. ठीक है. But who continues to have nocturnal enuresis every night. Every night. And would like to be dry for a school camping trip in 2 months. 2 months में camping trip होने वाली है, and he would like to be dry for a school camping trip in 2 months. क्या कहते हैं? Anticholinergic medication. No. Anticholinergic medications, no. Other than that, what are the primary medications? What are the primary important thing? What you going to do it? Yes. Ikra, can you guess? Dr. Malik? Alarm Desmopressin. system करेंगे सबसे पहले. Desmopressin. ट्राइसाइक्लिक मेडिकेशन. Desmopressin. उसकी ट्रिप जो है ना वो 2 months के अंदर अंदर है. ठीक है. Desmopressin देंगे. Yes. क्यों डेस्मोप्रेसिन देंगे डॉक्टर मालिक? Because क्यों अलार्म नहीं देंगे? it is used for short term control. Short Yes. वेरी गुड. इकरा यहाँ मैं भी एक्सप्लेन करूंगी अपने लेक्चर में कि why not alarm and why desmopressin. We will discuss this point. But यहाँ पे ये चीज important है कि हम अभी थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, but things will be clear inshallah. So the first of all, the important thing is that the bedwetting, another name is called nocturnal enuresis. Okay, and this bedwetting is a very common condition, very common, and prevalence of bedwetting decreases with the age. Decreased with the age, and the important thing is that we have 2 types of bedwetting.
The first type is that you have every night you are bedwetting, or second thing is that bedwetting which is less than 2 nights a week. Less than 2 nights a week means 1 night per week. Okay, so this is infrequent bedwetting, and if the child is every night, that is frequent bedwetting. So infrequent bedwetting का भी इन्होंने लिखा है, that is not that much important, but एक आइडिया लेने के लिए कि देखो 20% प्रेवलेंस है एट एज 4.5 years में, और वो रिड्यूस्ड हो जाती है बाय 10 to 8% बाय द एज ऑफ 9.5 years. सो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो आप ये देखें कि 10 years तक बिल्कुल इनफ्रीक्वेंट पे आ चुके हो. जो फ्रीक्वेंट bedwetting है जो कि लेस कॉमन है, और वो भी 8% कॉमन है बिल्कुल अंडर 5 years, और 10 years के बच्चों में तो जस्ट 1% के अराउंड है. तो विद एज जो है इसकी प्रेवलेंस कम है, और bedwetting जो है मोस्ट ऑफ द टाइम देखो इट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली. ठीक है, occur every night. Those bedwetting which is very frequent, which occur every night, is classified as a severe form and less likely to resolve spontaneously than the infrequent one. So you have to remember it कि जो infrequent one bedwettings है वो spontaneously ही resolve हो जाती हैं, but जो daily है वो resolve इतनी easily नहीं होती है. ठीक है, ये एक सिंपल था. अब हमने ये देखना है कि नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस हम कब लेबल करते हैं. इफ द चाइल्ड स्टिल bedwetting फॉर मोर देन, कहीं किसी बुक में 5 year है, कहीं पे 6 to 7 है. सो मैंने यूके में भी चेक किया था, एनएचएस में तो कहीं पे 6 to 7 years है, कहीं पे मोर देन 5 years है. तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. So just remember 5 to 6 year is a general word. कि if it's a persist more than 5 to 6 year, you will call it as a nocturnal aneurysm. उसको सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये करनी है कि वो मोनोसिम्टोमेटिक. मोनोसिम्टोमेटिक का मतलब है कि सिम्टम सिर्फ मोनो मींस ओनली एट नाइट टाइम. यू सी नाइट इज देयर, सो इफ द सिम्टम्स ओनली एट द नाइट टाइम, दिस इज कॉल्ड मोनोसिम्टोमेटिक. से नाइट टाइम पे सिर्फ एक ही सिम्टम है, वो ये है कि बच्चा bedwet करता है. बट नॉन मोनो का मतलब क्या है? नॉन मोनो का मतलब यह है कि नॉट ओनली द नाइट बट ऑल्सो एट द डे टाइम. और उसमें सिंगल सिम्टम्स नहीं होंगे. डे टाइम पे मे बी यू हैव ड्रिबलिंग, अर्जेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मे बी बर्निंग, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सो दे आर नॉट द मोनोसिम्टोमेटिक, एंड विद द नाइट द सिम्टम्स विल ऑल्सो बी ऑन द डे टाइम. तो ये सबसे पहले आपने क्लासिफाई करना है कि एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट. अगर आपका नॉन मोनोसिम्टोमेटिक है, बहुत टाइम पे हो रहा है, तो ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. ठीक है ना. पहले केस में इसी वजह से डॉक्टर उज़ैफा ने उसको टर्शरी केयर भेजा, कुछ भी खुद से नहीं किया, क्योंकि उसने ये चीज पिक कर ली कि उसे डे टाइम पे भी प्रॉब्लम है, वो सिंपल एन्यूरिसिस नहीं है. ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन तो ये हो गई. अब जो आपका मोनोसिम्टोमेटिक है, जो मोनोसिम्टोमेटिक का मतलब ये जो सिर्फ रात में प्रॉब्लम है, वो भी फर्दर क्लासिफाइड होता है कि वो प्राइमरी प्रॉब्लम है या फिर सेकेंडरी. ये आप हिस्ट्री में अपनी इवैल्यूएट करो. सो प्राइमरी वो होते हैं जिन्होंने कभी भी गेन ही नहीं करा नॉक्टर्नल यूरिनरी कंट्रोल. शुरू से ही वो bedwetting कर रहे हैं. पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं, मेरा बच्चा जो अब तक ड्राई बाय नाइट नहीं हुआ. ये क्लासिफाई हो जाएंगे प्राइमरी में. सेकेंडरी में वो होंगे कि वो बच्चे जो कि हो चुके हैं ड्राई बाय नाइट पीरियड, एटलीस्ट 6 month का पीरियड उन्होंने गुजार लिया है ड्राई बाय नाइट, और फिर उनको दोबारा से bedwetting होना शुरू हुई. दिस यू लेबल्ड एज अ सेकेंडरी. ओके, सो अगर एक बच्चा है 5 साल पे ड्राई बाय नाइट हो गया है, और अब 7 नजर आ रही है कि दोबारा से bedwet कर, सेकेंडरी है कि उसने बीच में 6 month से ज्यादा ड्यूरेशन क्या कर लिया. हिस्ट्री में इसको कैटेगराइज करना है. पहले आपने ये चीज कैटेगराइज करनी है कि ये मोनोसिम्टोमेटिक है या नॉन मोनो है, और सेकंड आपने ये डिसाइड करना है अगर मोनो है, अगर नाइट का प्रॉब्लम है, तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है. फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो इस स्लाइड के अंदर दी गई है
कि जेनेटिक इंपॉर्टेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस, कि अगर बोथ पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो आप देखिए 77% बच्चों में चांसेस है एन्यूरिसिस का, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। अब वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो 44% है, और अगर दोनों पेरेंट्स में हिस्ट्री नहीं है फिर भी चांसेस है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के, बिकॉज सिर्फ पेरेंट्स ही जेनेटिक्स में नहीं आएंगे, कजन को है, खाला को बेची को है, खाला को ग्रैंड मदर ब्ला ब्ला ब्ला, आस पास के कजन्स को है, सेकंड आपके जो डिग्री रिलेटिव्स आ जाते हैं उनको भी हिस्ट्री है, तो यू ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि ये एन्यूरिसिस हो क्यों रही है, ठीक है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के क्या कॉजेस हैं, और इन्हीं कॉजेस पे हमने काम करना है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। सो पहला जो कॉज है वो है नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। क्या बोला? नॉक्टर्नल polyuria. This is the first case. First could be the problem. Second could be diffuser overactivity. Third, it could be high arousal threshold. Fourth could be small functional bladder capacity. तो ये 3-4 जो है more important causes हैं, और always remember never blame the parents. ये माँ तो उठती ही नहीं है, बच्चे को बार बार यूरिन करवाती नहीं, it's not related to the, देखो, not because of the poor parenting and not because of the laziness of the child. So do not blame the child, do not blame the parents. Okay, so please keep this thing in your mind whenever you are doing the counseling sessions. So it should be in your mind कि ये parents का कोई वो नहीं है, parenting से कोई concern नहीं है, ठीक है। फिर अब हम डिस्कस करें ये पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया के क्या इंपॉर्टेंट कॉज है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि एक ड्राई चिल्ड्रन बच्चा है, अगर आप ऊपर वाली फिगर में देखिए, एक ड्राई चिल्ड्रन बच्चा है और ये एन्यूरेटिक चिल्ड्रन है, उस पे उन्होंने क्या नोट किया, वेसोप्रेसिन की सिक्रीशन को उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो बच्चे ड्राई थे उनके अंदर नाइट टाइम एबी सिक्रीशन, जो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे कहते हैं, उसकी सिक्रीशन नाइट टाइम पे बहुत हाई थी। तो इसी वजह से उनका यूरिन इतना ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, यूरिन ही कम बन रहा। जबकि जो सम एन्यूरेटिक चिल्ड्रन में व्हाट दे से इज दैट कि उनका जो है वो डेस्मोप्रेसिन एवीपी के लेवल जो है वो क्या है, लो। तो उन्होंने यहां से जो है वो आपको कॉन्सेप्ट मिला कि हमें मेडिकेशन, जो फर्स्ट लाइन हमारी जो हमें मेडिकेशन देने की बात है, कि अगर किसी ने ट्रिप पे जाना है, इस टाइम अगर आपको ये लिखा है कि 2 या 3 दिन के अंदर उसने ट्रिप पे जाना है, तो इतनी जल्दी आपको किसी भी चीज को चेंज करना है तो वो मेडिकेशन का काम यहाँ पे हो सकता है कि आपने उसकी एवीपी या डेस्मोप्रेसिन की सिक्रीशंस को हाई करना है ताकि उसका वॉल्यूम ऑफ द यूरिन जो है वो कम हो जाए। तो ये नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। तो ऑलवेज रिमेंबर जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस जो कि बिल्कुल कॉमन कंडीशन है, जिसमें कोई पैथोलॉजी अंडरलाइंग नहीं है, उसमें नॉर्मली जो बच्चा जो है ना वो विद इन 2 आवर्स ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन पास करता है, ठीक है। उसका जो क्लू आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि बच्चा जो है वो रात में अभी सोता है 1-2 घंटे में ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कुड भी जो प्रॉब्लम जो है वो प्रोबेबली दैट चाइल्ड इज नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेसोप्रेसिन एट द नाइट टाइम। तो ये एक जो है वो पैथोजेनेसिस हो सकती है। सेकंड क्या पैथोजेनेसिस है कि जो आपके मसल्स हैं अराउंड द ब्लैडर, जिन्हें हम डिट्यूसर मसल्स कहते हैं, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, ठीक है। सो हाइपर एक्टिव होने की वजह से नॉर्मली व्हाट हैपेंड कि जब आपने नॉर्मली ये होता है कि जब पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो कि आपके मसल्स वो वाले मसल्स हैं जो आपकी अपने कंट्रोल में, ठीक है, एक्सटर्नल उनका कंट्रोल है, जब ये रिलैक्स होते हैं तो डिट्यूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिन प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल की रिलैक्सिंग से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे जो है वो स्मॉल यूरिन भी आ रहा है ना ब्लैडर के अंदर, तो वो इतना हाइपर एक्टिव हो रहा है। और यहाँ पे आपको टिपिकल हिस्ट्री ये मिलेगी कि बार बार बच्चा स्मॉल अमाउंट में जो है वो यूरिन कर रहा है। तो ये भी एक आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन होता है कि अच्छा मदर रात में बच्चा कितनी दफा यूरिन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है या ज्यादा कर रहा है।
तो एक दफा तो मैंने बता दिया कि फौरन कर रहा है और ज्यादा अमाउंट कर रहा है, प्रोबेबली पॉलीयूरिक इशू हो सकता है। बार बार हो रहा है तो प्रोबेबली डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी है। और यहाँ पर आपका रोल आ जाता है, किसका रोल आता है, जो हमने पहला क्या पढ़ा था, एंटीकोलिनर्जिक। और कौन सा एंटीकोलिनर्जिक आता है मरियम, ऑक्सीब्यूटिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो एंटीकोलिनर्जिक ऑक्सीब्यूटिन जो है वो इस कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड जो चीज हमने पढ़ी थी, जो एक हमारा सिनेरियो था, वो हम देखते हैं। थर्ड चीज थी हाई अराउजल थ्रेशोल्ड्स। हाई अराउजल थ्रेशोल्ड जो होते हैं कि जो बच्चे, उनको आप इसमें हिस्ट्री में ये पूछेंगे सिंपली कि आपका बच्चा रात में आसानी से उठ जाता है, नहीं, कितना भी शोर कर लो बच्चा उठता ही नहीं है। तो अराउजल, आपका अराउजल थ्रेशोल्ड कितना है, ये आप अपने क्वेश्चन के अंदर इस तरह से करें। जो बच्चे इजीली एकदम रात में उठ जाते हैं, फौरन से उठते हैं, दे आर, जिनका थ्रेशोल्ड कम होता है तो वो यूरिन के लिए फौरन उठ जाते हैं। बट जिनका अराउजल थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, बहुत डीप स्लीप में जाते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होता है। फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी अगर किसी की कम है, बार बार जो है वो उसको यूरिन आता है, तो उसको फिर आपने ट्रेन करना होता है। स्पेशली आप डे टाइम पे उसको ज्यादा फ्लूइड देते हैं ताकि उसकी ब्लैडर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो और वो यूरिन ज्यादा अमाउंट में होल्ड कर सके। सो दीज आर द डिफरेंट पैथोजेनेसिस जिसमें हम वर्क करते हैं एन्यूरिसिस में। हमारा जो सिनेरियो, जो इकरा का सिनेरियो था, उसमें क्या हो रहा था कि नॉर्मल बाउल आप देखो ब्लैडर से काफी दूर है, ठीक है, और इसकी ये शेप है। अब ये हो गई कॉन्स्टिपेटेड। इस कॉन्स्टिपेटेड में ये पूरा रैक्टम जो है वो इनलार्ज हो गया और ये आपको कंप्रेस करेगा यूरिन को। जब ये कंप्रेस करेगा आपके ब्लैडर को, तो डेफिनेटली देन यू हैव अ ड्रिबलिंग एज वेल। So this is the picture कि constipation is also very important cause of enuresis and urinary problems. अदर प्रॉब्लम्स अब हमने करे थे, एक हमने प्राइमरी लेबल किया था कि प्राइमरी प्रॉब्लम्स की तो हमने ये सारी पैथोजेनेसिस पढ़ी थी। अब हमें अब सेकेंडरी जो हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी में जो बच्ची जो है जिसने बाद में शुरू कर दिया, एक एक टाइम पीरियड उसने गुजार लिया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक था और फिर उसको एन्यूरिसिस होना शुरू हो गई। तो ऑलवेज सी द इम्पोर्टेंट टू टर्म्स, दीज आर सो मच इम्पोर्टेंट कि बच्चे को स्ट्रेस है किसी चीज का या चेंजेस हो रही है कोई एट होम पे या स्कूल पे, ये बकायदा एक क्लिनिकल की एक हिस्ट्री है क्लिनिकल केस की कि डे टाइम एन्यूरिसिस होना शुरू हो गई। ये बच्चा जो है वो स्कूल से आता है और जो है वो यूरिन पास कर देता है, आते ही उसकी पैंटी गीली हो जाती है, मदर कंप्लेन करती है। तो आपने हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जब भी हमारे पास पॉलीयूरिया आता है, हम डायबिटिक इंसिपिडियस, डायबिटीज मिलाइटस, साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही फंसे रहते हैं। इस स्ट्रेस को, चेंजेस एट द स्कूल और होम को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री जब आप डिग करेंगे तो पता चलेगा स्कूल में बुलिंग होगी, स्कूल का वॉशरूम बच्चा पसंद नहीं कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं अगर स्पेशली कोई सेकेंडरी डेवलप करे। तो डायरेक्ट आप इन्वेस्टिगेशन और बड़ी डिजीजेस तो आपने करनी है रूल आउट, बट यू शुड ऑलवेज थिंक, और स्पेशली अपनी हिस्ट्री में आपने ये स्ट्रेसेस का, चेंजेस एट होम और स्कूल का डेफिनेटली पूछना है। चेंजेस एट होम से रिलेटेड ये होता है, बाज दफा कोई लाइक फॉर एग्जांपल यूके सिस्टम के अंदर उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं ऑल दैट, तो आपने ये भी पूछना होता है कि इज योर चाइल्ड हैप्पी एट होम, और डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड एट होम या बॉयफ्रेंड, हाउ हिज रिलेशनशिप विद द योर किड। और किड्स जो होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, कोई उनके साथ बुरा करता है ना तो वो बहुत डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं, वो कभी फ्रेंडली नहीं होते उस बंदे के साथ। सो ये सब आपने बिहेवियर्स पूछने कि घर पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो यूरिनेशन करना शुरू हो गए। So that is all very important. Other than that, diabetes insipidus, mellitus, constipation, we all know these secondary causes. So these all are the questions जिसकी relevance है, ये आपकी बुक के अंदर लिखे हुए थे कि how many nights a week, ताकि ये frequent है कि infrequent है, how many times a night, night में भी कितनी दफा कर रहे हैं तो पता चले। Does there seems to be a large amount है तो उसका problem ADH वाला है। At what time of the night does bedwetting occur? Mostly जो high volume होता है जिसका vasopressin है वो within 2 hours ही कर देते हैं। Does the child or young person wake up after bedwetting? क्या ये बच्चा जो है वेकअप होता है, इसका थ्रेशोल्ड कैसा है, आफ्टर बेडवेटिंग के बाद ये उठता है कि नहीं उठता?
फिर डे टाइम सिम्टम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट टोल्ड यू कि डे टाइम में आपने अर्जेंसी पूछनी है, फ्रीक्वेंसी पूछनी है, कॉन्स्टिपेशन का पूछना है, so you can read all about it. We discussed on toileting patterns. Toileting, does the child or young person avoid using certain toilets, especially school related? Does the child, young person go to toilet more or less often than his or peer? घर में वो किस तरह का उसका behavior है? Do daytime symptoms happen only in certain situations? तो ये सारे psychological और stress. Fluid intake is also very important. Fluid intake अगर नाइट टाइम पे आपका ज्यादा होगा तो दे ऑल्सो कॉजेज पॉलीयूरिया. सो हाउ मच द चाइल्ड ड्रिंक ड्यूरिंग द डे. तो अगर वो डे में बहुत थोड़ा थोड़ा पी रहा है तो मे बी उसके जो है वो ब्लैडर कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है. आर दे ड्रिंकिंग लेस बिकॉज ऑफ बेड वेटिंग और नॉट, और आर द मतलब बेड वेटिंग की वजह से आपने पानी जो है वो रिस्ट्रिक्शन की हुई है कि नहीं की हुई. आर द पेरेंट्स और कैरियर रिस्ट्रिक्टिंग ड्रिंक्स बिकॉज ऑफ द बेड वेटिंग. तो ये आपको हिस्ट्री में आइडिया हो जाएगा कि ऑलरेडी वॉल्यूम कम किया जा रहा है, बच्चे को इसका अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन. बट उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉजेस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सेकेंडरी यूटीआई के लिए उन्होंने पूछा है, ठीक है, एनकोपेरिसिस भी हो रही है यानी कि स्टूल भी पास हो रहा है, तो यकीनन स्ट्रेस है कि बच्चा जो है वो खौफ के मारे यूरिन और स्टूल दोनों के दोनों पास हो रहे हैं. ठीक है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सीपी चाइल्ड्स हैं और उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, तो अगर उनके माइलस्टोन लेट अचीव हो रहे हैं तो इनका यूरिनरी कंट्रोल भी लेट अचीव होगा. ठीक है, अदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स लाइक फॉर एग्जांपल स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, स्पाइनल लाइक बाइफिडा है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं. Family history is very very important. I just mentioned about that. Any traumatic incidents in the family, कोई ऐसा, तो ये सारे आपकी इवैल्यूएशन के अंदर डिटेल्ड हिस्ट्री है जो आपको हेल्प आउट करेगी. एग्जामिनेशन के अंदर आपने हमेशा से याद रखें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन डेफिनेट करना है फॉर ब्लैडर, फॉर स्टूल एंड फॉर रीनल मैसेस. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्पाइना बाइफिडा, ऑकल्टा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर और बैक एग्जामिनेशन. Or sometime maybe you need to do for genital for hypospadiasis because they are also associated with leaking and all other genital problems as well. So ये important examination, back examination, neurological examination and abdominal examination is utmost important. ठीक है, अब हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना वो एन्यूरिसिस अलार्म है और डेस्मोप्रेसिन है. अब इसका कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए रिक्वायर्ड टाइम, आपको टाइम चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको हार्ड वर्क चाहिए. ठीक है ना, क्यों, और ये बेस्ट अफेक्टेड है जो मोटिवेटेड हो कि मुझे करना ही करना है. बच्चे में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है. और किस तरह से करते हैं, देखो आपने पैंटी के अंदर या अंडरवेयर के अंदर आपने सिंपली अलार्म लगा देना होता है और एक यहाँ पे सेंसर लगता है और एक शोल्डर के पास लगता है. जैसे ही हल्का सा ये वेट होता है जोर जोर से शोर करने लग जाता है. ठीक है, तो ये इसमें जो है ना पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए कि बाज दफा बच्चों का ठीक है, तो आपने इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज बताई, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए. बच्चे का हाई थ्रेशोल्ड है, बच्चा उठ ही नहीं रहा, अलार्म से भी नहीं उठ रहा, तो पेरेंट्स को उठा के करवाना पड़ेगा, तो पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टाइम भी आपको चाहिए. और इसके अंदर देखो फेलियर के भी रेट्स हैं. ठीक है ना, देखो इसमें क्या लिखा है कि ये एक्सपेंसिव भी है, इसमें फेलियर अनलेस आप 14 कंसेक्यूटिव, कब तक आपको ये अलार्म सिस्टम करना है, जब तक आपको 14 कंसेक्यूटिव ड्राई नाइट्स ना मिल जाए, और मे बी आपको 2 to 3 मंथ्स तक आपको कोई अफेक्ट ही ना मिले. देखो 2 to 3 मंथ विदाउट एनी अफेक्ट. तो अगर आपको नहीं अफेक्ट मिलता तो आपने सम टाइम्स के बाद दोबारा से इसकी न्यू अटेम्प्ट स्टार्ट करने, इसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना. ठीक है, सो ये थोड़ी सी टाइम रिक्वायर्ड हार्ड वर्किंग है. जबकि डेस्मोप्रेसिन क्या है, डेस्मोप्रेसिन आपके उसी काम वाटर को कम करी, तो ये शॉर्ट एक्टिंग काम कर रही है. ठीक है, इजी टू यूज है, क्विक इफेक्ट है, हार्मलेस तब है अगर आपने उसके साथ एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक नहीं किया. तो इसकी इंस्ट्रक्शन हमेशा रहती है कि अगर आपने ये सिप लिया पानी का और ये मेडिसिन ली, उसके बाद थ्रू आउट नाइट आप कोई पानी नहीं पी सकते.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, लो क्यूरेटिव पोटेंशियल है, क्योर नहीं करती कंडीशन को, जस्ट सिम्टोमेटिक वो कर रही है। बेस्ट इफेक्ट कब होगा? जब नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया प्रेजेंट होगा। और ये इसमें क्या लिखा है कि नो नाइट टाइम ड्रिंकिंग, इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट और ऑन इंपॉर्टेंट नाइट्स ओनली और आर बोथ। तो इसमें यही लिखा है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक नाइट पे अगर आप चाह रहे हैं कि ना प्रॉब्लम हो, तब भी ये यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। और अगर आपको कंटिन्यूअस रातों में चाहिए कि मैं जब तक ट्रिप पे हूँ मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं डेस्मोप्रेसिन। तो दैट इज वाई ये दोनों ही फर्स्ट लाइन है। अगर आपको कोई ऐसा ट्रिप का मसला नहीं है और आपको फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं, तो आप एन्यूरिसिस अलार्म पे जाएं। जब आपको बाउंड कर रहे हैं और जल्दी का कोई इफेक्ट चाहिए, देन ओनली यू गो फॉर डेस्मोप्रेसिन। सेकेंडरी जो है वो आपके पास, जो भी अपने बात की एंटीकोलिनर्जिक ऑक्सीब्यूटिन, ये सेकेंड लाइन होती है। और मैंने आपको बता दिया कि जब यूज होती है जब आपका ब्लैडर स्पैजम्स हो और आपको इंक्रीज करनी है फंक्शनल कैपेसिटी, देन ओनली यू कैन यूज, बट दिस इज सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन होने की वजह से इसमें एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स को आपने देखने होते हैं, जैसे कि बच्चे को फ्लशिंग होगी, ड्राई माउथ होगा, जो भी आपके एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं वो सब आपने उसमें ऑब्जर्व करने हैं। थर्ड लाइन आपकी जो है वो आ जाती है कौन सी? एंटी ट्राइसाइक्लिक। ठीक है, इसमें इम्पेरामीन है। इम्पेरामीन जो है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और ये आपकी एसोसिएटेड होती है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल में। तो ऑलवेज इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ईकेजी करवानी होती है। और इसमें जो है वो आपको इंसोम्निया और मूड स्विंग्स मिलते हैं। फिर आपकी जो है लास्ट चीज जो आ जाती है वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। Okay, so medications we already discussed. Imperamine can be used for nocturnal symptom. Exact mechanism is not known. Bladder training encourage करनी। Bladder training क्या है? आपने capacity को increase करना है, increasing oral fluid intake. The daytime to improve the overall bladder capacity and reduce करना है fluid intake को in the evening to reduce the nocturnal volumes of the urine. And laxatives are used in case if you have constipation. So that's all for your enuresis, okay? Is there any questions? Well, yeah.